Myself, Sandeep Gupta. I'm into IT industry for close to 18 years, and basically, I have been part of every basically development phase, testing phase, or anything which is related to the project. Okay, and yeah, so here basically we are going to talk about ये आईटी क्या चीज होती है, ये पाइथन क्या चीज होती है, एंड ये कोर्स करके या तो फिर पाइथन प्रोग्रामिंग सीख के व्हाट पीपल वुड बी एबल टू गेन नॉलेज एज वेल एज व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. देखो, करना सब चाहते हैं, बट एट द एंड व्हाट इज द बेनिफिट दैट दे आर गोइंग टू गेट, दैट इज द मेन पर्पस हियर. So for that we all are here. Don't worry, I'll guide everything, I'll explain everything, how what are the career options are there. ये कोर्स करके या तो फिर पाइथन सीख के आपको क्या बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, तो आई विड क्विकली नीड योर गाइज क्विक इंट्रोडक्शन. तो दैट वाज अबाउट मी. I worked with JP Morgan Chase. I worked with the UK, US companies, Argo International, Argo Insurance, and everything. So here, my motto is basically is to share my knowledge and to make sure that you guys get the knowledge about how the Python programming works. Okay, so quickly, if I will go ahead with the introduction. So can I have Akash? Akash, can you introduce yourself to me? Akash Kamble. Sure, sir. Sure. Hi, my name is Akash Kamble, and I belongs to Mumbai Central. Okay. Currently, I'm working in TIAA as a senior system engineer, and I'm right now I'm in network domain. I'm currently working in network domain, and I'm trying to switching in as a developer. So I'm looking for learning Python. Okay, which year you completed your graduation basically? Last 2014. Last 2014. Wow. Yes. लास्ट कहा था इसमें. Sorry. So by mistake. Okay, 2014. तो Yes. 9 साल क्या फिर आपने टेक्निकल सपोर्ट में किया और क्या किया आपने? Yeah, so I'm carrying an experience of 5 years. 5 years. Yes. Okay. तो क्यों स्विच करना चाहते हो टेक्निकल सपोर्ट से डेवलपमेंट में बेसिकली? Yeah, actually मुझे थोड़ा डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट. वेरी गुड. सो आपको प्रोग्रामिंग क्या होती है ये सब, आई होप यू हैव ब्रीफ आइडिया क्या? यस, तो बेसिक नॉलेज तो है प्रोग्रामिंग में, जैसे कि जावा क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एरे रिसोर्ट क्या है, वो सब. ओके, ठीक. गुड. थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन. या थैंक यू सो मच. आई आल्सो सी अलमस रखांगी. Yes. Yesterday I have already joined, I guess. For testing part, right. Yes. ठीक है. So you just wanted to switch the career options, other yes. IT. Yeah. Okay, Almas. Thank you. I have your details here. Okay. I see Dharav Prajapati. Hi, Dharav. Good afternoon. Good afternoon. Can I have your quick introduction? Yes, sir. Yes, sir. My name is Dharav Prajapati. I am from Navsari, Gujarat, and I just completed my graduation in 2023. And I am gonna make my career as a developer. So I joined this upsurge. Okay. तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? मैंने BCA कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन में. ठीक. Okay, so you might be having brief idea कि कैसे ये पूरा IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम करता है, and then how basically मतलब इसके करियर ऑप्शंस क्या हैं, right? Yes, sir. Okay, good. अपने ग्रेजुएशन में BCA में प्रोजेक्ट किया होगा खुद से? हाँ सर, प्रोजेक्ट किया था ना इस बार, PHP और उससे कंप्लीट किया था, पाइथन में नहीं किया था, लेकिन अभी पाइथन सीखना है. Okay, but why Python? मतलब सर, अभी जो आज के जो ट्रेंड्स के हिसाब से पाइथन, रिएक्ट, एंगुलर इन सब चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है कंपेयर टू .NET एंड PHP. करेक्ट. That's why. Okay. ठीक है Dharav. I got your point, and I just see Harmpreet just left. Okay, Sudhir Swine is there. Hi, Sudhir. Hi, Sandeep. Yeah, hi. So myself, Sudhir, I have 10 years of experience in IT industry. So for my career growth, I'm looking for Python. Career growth. Yeah. जो कर रहे हैं उसमें career growth नहीं है और Python में होगा. नहीं. So basically कैसा है कि infra industry में हूँ. So automation scripting के लिए मैं learn कर रहा हूँ.
ओके, ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग के लिए आप पाइथन सीखना चाहते हो। ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग मतलब क्या, आप क्या करते हो उसमें तो ऑटोमेशन? बेसिकली कोई जॉब रन करना है या क्लाउड एनवायरनमेंट में कुछ डिप्लॉयमेंट करना है, कुछ भी करना है, उसके रिलेटेड जो पाइथन के रिक्वायरमेंट रहता है वो फुलफिल करने के। सो बेसिक पाइथन रिक्वायरमेंट। बेसिक मतलब आपको पाइथन सीख के आपको करंट जॉब में यू वांटेड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन ऑटोमेशन जो आपके यस। आईटी सपोर्ट में या तो आईटी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करे। यस। ओके, ओके, ठीक है। आई सी Harmeet have joined. Hi Harmeet, can I have your quick introduction? Hello Harmeet. I think Yeah, hi guys. Could you hear me? yeah, Yeah, I hi can hear Sandeep. you. Yeah. So I have 20 years of experience in IT. I've been into the projects deliveries and everything. So I manage the IT infrastructures and services. So currently, just to be at the par at the industry standards, I'm getting along with Python. Okay, so industry standard में सिर्फ Python cover होता है, बाकी कुछ? No, just to be at the par that now that there is an you have to upskill and upscale as well. Correct. So that is Yeah, where upskilling is the better word I would say. So yeah what happened that Python actually Java के साथ साथ they both started with the same time 1990 में something start हुआ था. But what happened that initially the response for the Java was more than what Python earlier मतलब should get. yeah right So but then time changes everything. In fact in IT industry the dynamics are so basically quick changes actually. So that is the reason things are moving towards Python these days. right So Java था, .NET है, PHP है, सब जगह भी now Python they people are expecting. तो right that is the reason Python is booming because बहुत सारे career options आ गए हैं. If I'll talk about Python, just for everyone, not just for you, actually. yep So Python is a lean programming language. It's basically less of a syntax, less of the things that you need to remember, and more complex thing that you can achieve out of it. That is the reason people these days are moving from the other programming languages to Python programming language. We'll get to that part. yep Okay. ठीक है, ठीक है. So majorly if I'll say some IT background people are having here, so it would not be much difficult for me to explain them कि नहीं क्या होता है पूरा. But फिर भी I'll just start with the quick I'll share my screen and just try to explain you guys how the entire IT part works basically from website and where Python will work and what are the other element or basically things required for getting into IT development side of it. See, in IT there are multiple things. So IT can be either basically project management, requirement, that is business analyst part, development, testing. There are various segments to it, and there is the IT support, IT deployment. Okay, so here we are going to talk majorly from the development side of it because Python deals with the backend programming. अब ये backend programming क्या होता है, programming language क्या होती है, certain basic concept we'll try to understand this, and after learning Python, what are the career options would be there, that I'll try to give you. So आप लोग को थोड़ा सा brief idea हो जाएगा सिर्फ Python सीख के क्या हो सकता है, ठीक है. So that is the main goal here. So upskilling definitely. In one of the earlier when I was to work, the HOD head of our basically CTO basically, she used to tell कि भाई सबको Python सीखना जरूरी है. तो it was a very simple programming, and then we used to think अरे मतलब आंटी थोड़ी सी परेशान हो गई है, हमको काम पे लगा रही. But literally those words are because you have to vision something which is going to come in future. So Python in that transition phase itself, now it has picked up a pace because of the data science and other part. ठीक है, मैं I'll just थोड़ा सा ज्ञान कम करते हैं and presentations I'll just try to share it. I'll switch off my video. I'll share my screen. Okay. 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 Okay, guys. So I hope my screen is visible to you. Okay, I will open one slide. So पहले तो हम लोग समझते हैं कि पाइथन इस पूरे लैंडस्केप में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कहाँ आता है.
Okay. So here I will majorly talk about the Python part, and other than Python, I would talk about full stack development. अब full stack development क्या होता है, उसमें Python का क्या रोल है, how we are going to learn, मैं वो सब चीज पे आता हूँ. ठीक है. ओके, सो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि हाउ हाउ द एंटायर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट वर्क. आर्किटेक्ट मतलब क्या होता है कि मेरा एप्लीकेशन जब डेवलप होता है, इससे भी पहले तो आई वुड थिंक आई शुड एक्सप्लेन यू गाइस कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. आई थिंक एवरीबॉडी इज पार्ट ऑफ फ्रॉम द आईटी, सो आई होप यू गाइस नो एसडीएलसी क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, राइट? यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट पार्ट? उसके अंदर फिर No, डेवलप, that's आई होप दैट इज फाइन, राइट? सो सम नॉलेज दैट यू हैज है. तो मैं डेवलपमेंट में आता हूँ. बेसिकली आई जस्ट डायरेक्टली गेट टू दैट पार्ट. तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन को अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करने जाऊँ ना, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन नहीं, मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ. सॉफ्टवेयर को ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, फ्रंट एंड बैक एंड. ठीक है, ये हम यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे मतलब इन द सेंस व्हेन वी सी समथिंग फ्रॉम द स्क्रीन, हमारी आंखों के सामने, जैसे अभी प्रेजेंटेशन ओपन है, that you seeing on your laptop, mobile, tab or anywhere. ठीक है, सो वो जो आंखों से देखते हैं, that we call in IT language front end. ठीक है, फ्रंट एंड इज जस्ट अ स्ट्रक्चर. बेसिकली इट कंटेन्स, जैसे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बात करूं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, which define how my application should look like to the end user. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लेता हूँ. ह्यूमन बॉडी में अगर एग्जांपल ले लूँ तो इंटरनल व्हाट वी हैव बोन्स, स्केलेटन्स. तो HTML इज दैट ओनली, इट्स अ स्केलेटन. इट होल्ड्स द एंटायर एप्लीकेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, देन उसके ऊपर थोड़ा कलर डिजाइन कर दिया, जैसे हेयर कलर ले लेते हैं, स्किन कलर. अगर मैं सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको डिजाइन देने के लिए CSS होता है. देन आफ्टर CSS वी हैव गॉट जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट बेसिकली डायनामिज्म देता है. ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे आफ्टर सिलेक्टिंग समथिंग, सम अनदर पॉपअप शुड कम, आफ्टर सिलेक्टिंग सम अदर ऑप्शन द अनदर पॉपअप शुड कम. तो ये सब चीज होता है. आई नो गाइस, ये थोड़ा सा धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है. विल गो टू द प्रोग्रामिंग पार्ट, बट आप लोग को समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा आर्किटेक्ट कैसे काम करता है. देन विल गेट टू द पाइथन पार्ट. ओके, तो दिस इज द फ्रंट एंड पार्ट. नाउ कमिंग टू द बैक एंड. अब ये सिर्फ फ्रंट एंड बनाने से मतलब मेरा सॉफ्टवेयर बिकम द स्टैटिक, एक रीड ओनली, सिर्फ सामने सामने दिखता है, बट इट विल नॉट हैव डेटाबेस कनेक्शन, लॉजिक नहीं होते. तो उसके लिए बैक एंड बहुत जरूरी होता है. नाउ इन बैक एंड broadly if I say there are two things. One is application logic, second is database. Application logic is built, that is backend programming. ये backend का part है. backend पे जो programming करते हैं उसमें logic हम develop करते हैं, if else डालते हैं, variable बनाते हैं, we do a lot of stuff. I'll get to that part. Okay, so backend programming के लिए we have various programming languages, PHP, Java, Python, मतलब जावा भी होता है. जावास्क्रिप्ट बेसिकली फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, बट बैक एंड पे भी सर्टेन पार्ट वी कैन यूज. तो मैं अगर शॉर्ट करने जाऊं तो पाइथन एंड जावा. अभी फिलहाल बैक एंड प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा दो यूज होते हैं, और भी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं यूज, बट यहाँ पर हम लोग मेजरली इन पे अगर कंपैरिजन करने जाओ पाइथन एंड जावा में, नाउअडेज पाइथन इज अ बूमिंग. व्हाई? पाइथन इज लीन. मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा बिकॉज आई नो बोथ द पार्ट, हाउ जावा वर्क्स, हाउ पाइथन वर्क्स. मैं पर्सनली ऑल्सो बिलीव कि पाइथन ईजी है, बट इट्स जस्ट अ टिप. जैसे हम लोग ने टाइटैनिक मूवी में देखी ना, आइसबर्ग होता है, टिप इतना छोटा होता है बट सी के अंदर कितना बड़ा होता है. सिमिलरली पाइथन जब हम देखते हैं तो बहुत छोटा सा, मतलब इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग है, बट इट हैव अ वेरी मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन अचीव आउट ऑफ पाइथन. तो हम उस पर जाएंगे. ठीक है, बट ये जो एप्लीकेशन पे हम यूजर देखते हैं, फ्रंट एंड पे व्हाट एवर डेटा दैट वी एंटर, सपोज फॉर एग्जांपल यूजर नेम पासवर्ड, सिंपल एग्जांपल लेते हैं. तो वंस यूजर एंटर समथिंग, वो अपने आप डेटाबेस में नहीं जाता है. What happened that using application logic, we build it, and then it takes the user, it takes into the request format. Over the internet, it goes to the application logic with using Python programming. Then each element, ये जो front end पे element होता है, that get mapped with the database tables, rows and columns, etc. ठीक है, we call it name, class name, etc. उससे मैप करके it validates the data into database, then response received by the application logic, and then it responses shows in front of the user. So इस तरह से पूरा मेरा application logic work करता है.
पाइथन सीखकर हम ये बैकएंड प्रोग्रामिंग सीखेंगे. If somebody wants to understand this entire thing, all part, that we call it full stack development. Full stack development is basically it covers HTML, CSS, JavaScript, Django, Bootstrap. Okay. Then application logic side, if I'll backend programming side, Python programming सीखा जाता है. Python programming में बहुत से concept होते हैं that I'll take you through. Then there is a database. Okay. So in the full stack part, you will understand everything, but actual on job, on ground, actually full stack development, these days MNCs are expecting. तो MNCs कैसे expect कर सकते हैं? Basically is that they take it people as a full stack developer and then they'll put it on a project. Either वो front end डालेंगे या तो back end पे डालेंगे. यही दो होते हैं majorly. Okay. So फ्रंट एंड में आपको वेबसाइट डेवलप करना होता है एंड बैक एंड पे यू हैव टू डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देन एपीआईज बिल्ड करने पड़ते हैं व्हिच इज बीइंग इंटरैक्ट विद योर फ्रंट एंड. वो एपीआई क्या है, विल गेट टू दैट लेटर. ठीक है. सो आई होप एप्लीकेशन आर्किटेक्ट साइड थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग को समझ गया होगा. एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस ऑन द एप्लीकेशन आर्किटेक्ट साइड बिफोर आई प्रोसीड? या क्वेश्चंस गाइस, क्लियर है? Okay, no issues. So I'll quickly go to now how we are going to learn Python programming and क्या होता है उसमें. ठीक है. ये full stack का I hope all are here only for Python or full stack as well. So I'll focus on that part. I am only for Python. Only for Python? Yes. Others, anyone for full stack or only for Python, everyone? फुल स्टैक जानना है किसी को तो फिर I'll take that part, नहीं तो मैं सिर्फ पाइथन पे लेके जाता हूँ. ठीक. नो तो what I'll do now, I'll take everything. ठीक है. इसमें पाइथन एक पार्ट है. फुल स्टैक बेसिकली क्या होता है जिसमें पूरा वेबसाइट एंटायर डेवलपमेंट कैसे होता है, बट हर चीज में पाइथन सीखना जरूरी होता है. तो पाइथन इज बेसिकली इज ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू हैव 1.5 month. ठीक है. इसका कंटेंट मैं दिखाता हूँ. पाइथन के बाद HTML, CSS, Bootstrap, React.js, JavaScript, Django एंड देन डेटाबेस कनेक्टिविटी. एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं दैट वी लर्न इन पाइथन डेवलपमेंट. ओके. सो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या चीज कवर करेंगे 1.5 month में. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड basically how the variable, what are the different data types are there, variables are there, different operators जो perform करने होते हैं. pretty simple है ये, 1-2 दिन में हो जाते हैं सब. then major data types जो होते हैं list, tuple, set, dictionary, कैसे फॉर्मेट होते हैं, इनका इंडेक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, व्हाट आर द म्यूटेबल डेटा टाइप्स, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स दैट वी आर गोइंग टू डू. देन देयर इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, everything that we are going to cover in it. Then how the functions are, user defined functions are there. There are certain predefined functions, there are some user defined functions that we are going to cover. Then how using Python programming we are going to read file, update file. Okay. And that is called file handling. Error or exception handling, if there is something error happens in a program, how to skip that part, how to handle those error, that we are going to learn using Python. Regular expression is just basically in one line you want to handle multiple basically conditions. Then regular, then oops programming basically देखिए inheritance, polymorphism, abstraction and encapsulation, these things are covered. जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज oops बेस्ड होती है वहां पे ये 4 डिफॉल्ट मिल ही जाते हैं. ठीक है. बट देखिए एज अ बैकएंड प्रोग्रामिंग मेजरली इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, यही दो सबसे ज्यादा यूज होता है. एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली डेटा सिक्योरिटी या कोड सिक्योरिटी पे बात करते हैं. ठीक है. विल गेट टू दैट. In database, we are going to cover SQLite. SQLite is basically Python inbuilt database, which is going to be उसको मुझे external mapping की बहुत कम जरूरत पड़ती है, मतलब पड़ जाती है, बट यूजर नेम पासवर्ड MySQL में you need to define everything. तो SQLite is basically a database which we connect using Python programming, and it has a by default connection. Then GUI programming, actually में it's a topic that I'll cover. कोई फायदा नहीं है, आजकल कोई यूज नहीं करता है GUI programming Python का. Basically it's basically using Python you develop front end. ठीक है.
बट उसके टी के एंटर और डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल होती है जो यूज करके वी यूज इट डेवलप फ्रंट एंड, और आई वुड से एक एप्लीकेशन दैट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पाइथन, HTML, CSS, bootstrap, जावास्क्रिप्ट, ये डिफरेंट टॉपिक्स दैट आर. Django is a framework for front-end development and database. Okay, so I'll get to the Python. Python कैसे क्या काम करता है, सिंटेक्स पहले तो समझते हैं, कंपैरिजन बिटवीन पाइथन एंड जावा, ये देख लेते हैं पाइथन कैसे काम करता है, जावा कैसे काम करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा एक छोटा सा जावा और पाइथन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाने का ट्राई करता हूँ। वन सेकेंड, लेट मी शो हियर। एक सिंपल कमांड रन करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, ठीक है। आई विल क्रिएट सैंपल क्लास, ओके। ये दिस इज जावा, आई नो दिस नॉट अ पाइथन, दिस इज पाइथन क्लास, बट मैं एक बार सिंपल सा दिखा देता हूँ। अगर मुझे एक सिंपल प्रिंट कमांड देना है, इफ आई वांट टू राइट समथिंग, तो कैसे करेंगे, ठीक है। जावा में सबसे पहली चीज क्लास बनानी पड़ती है, मेथड बनाना पड़ता है, तो हो जाता है उसमें। मुझे एक सिंपल नाम प्रिंट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू प्रिंट अपसर्च इन्फोटेक, ठीक है। इन ऑर्डर टू दैट मुझे इतना बड़ा लाइन सिंटेक्स, सेमीकोलन, डबल कोट वगैरह 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 बहुत चीजें लिखनी पड़ती हैं। सेम चीज लेट्स ट्राई डूइंग इन पाइथन, ओके। तो मेरे पास एक पाइथन ये है, ideally shell basically it's used for python programming. It's basically it provide an environment जिसमें आप python programming लिख सकते हो। वैसे बहुत सारे, जैसे eclipse मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ for java, ideally I'm using it for python. Visual Studio we can use, okay, there is a PyCharm, there are various development tool which are there available for python, ठीक है। तो मैं सेम चीज let me try mentioning here for in python, okay। So here, okay, let me use basically a new one here it is, okay। The syntax is pretty simple. If you see here, मुझे सिर्फ print लिखना है, equal sign देते हैं, I just need to read. As soon as I'll run this, the output will come here as a subsearch info, okay? Whereas in Java, what I have to do, I have to write this entire part, double quote, square, this parenthesis that I need to provide, and then after that I need to provide semicolon. इसमें से अगर मैंने कुछ भी चीज छोड़ा ना, मेरा आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। If you see, the exceptions start coming in. That is the biggest disadvantage of Java, because you have to write everything in proper manner, else your program won't run. Python में ऐसा कुछ नहीं, you just have to provide क्या करना है and just provide that, ठीक है। Now, and one more thing, here in Java, I'm not, see, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं देखो मैं जावा भी सिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जावा को डिमोटिवेट, मतलब मिसल, मतलब उसको बुरा दिखा के पाइथन को अच्छा दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सी, आई यूज बोथ द थिंग्स, जावा एंड पाइथन, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। तो आई जस्ट ट्राइंग टू शो यू कंपैरिजन बिटवीन टू प्रोग्रामिंग एंड पाइथन क्यों अभी दीज डेज आर इन डिमांड, मैं उस पर भी आता हूँ बाद में, ठीक है। अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे सेम चीज स्ट्रिंग नेम करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया अपसर्च इन्फोटेक, ठीक है। नाउ ओके, यहाँ पर मुझे सेमीकोलन देना है, आई विल कॉल इट न्यू हियर। सी, मुझे यहाँ पर एक डेटा टाइप देना पड़ा, वेरिएबल नेम देना पड़ा, सेमीकोलन देना पड़ा, और मुझे उसको कॉल करने के लिए ये करना पड़ा, ठीक है। सेम चीज पाइथन पे देखो कैसे कर सकते हो। पाइथन पे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, you just have to provide the variable name and provide the value. You don't have to declare कि ये डेटा टाइप क्या है, इसका स्ट्रिंग है, इंटीजर है। इसमें बस डबल कोट में डाल दिया तो स्ट्रिंग वो अपने आप समझ लेता है। यहाँ पर मैंने डबल कोट में डाला हुआ है, बट फिर भी मुझे डिक्लेयर करना पड़ रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पे इंट कर दूं ना, इट विल गिव मी एरर मैसेज, ठीक है। बट वही यहाँ पर इट विल नॉट गिव मी एरर मैसेज। एक सेकेंड, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली, if I just have to mention data in that format, see, it will take it as, वो अपने आप उसको इंटीजर करके ले लेगा, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट,
Uh, let me see one second. इंक्वायरी के लिए ना हाँ इसलिए मैंने उनको अंदर भेज दिया क्योंकि 2 दिन हमारे इतनी की जरूरत नहीं है. लेट मी पुट इट इन अ टफ फॉर्मेट ओनली. मैं इसमें ही यहाँ पे एक नई फाइल बना के करता हूँ. ठीक है. नेम सर्च इन्फोटेक. मुझे इसको सेव करना पड़ेगा. चैलेंजेस दैट. ठीक है ना. So infotech have come here. So इसमें basically such syntax is pretty straightforward. Data type declare नहीं करना पड़ता है, and then basically it's pretty simpler than other programming language. अगर .NET देखना जाए, C# देखा जाए, C programming देखा जाए, तो उस सब comparison में Python is pretty simpler. इसमें database connection भी much easier than what we do in other programming. तो अगर मैं SQL से अगर मुझे database connect करना है, so in that case as well, I just need to provide simple database connection का. One second. We just have to import the database that we want to prepare. We just need to establish the connection between the database. If this database does not found in my file or in my laptop, it will create it. Then I just need to establish connection.cursor and then I just need to run it. ठीक है, it will create a database. तो इसमें database connection भी pretty simpler होता है as compared to other programming. अब ये Python से related मैं छोटा सा, I cannot cover the entire 1.5 month training in this short span of time, but इसका simple सा crux में अगर बोलने जाऊँ, syntax and लाइन ऑफ कोड एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग कम होते हैं और इसमें कोड मेंटेनेंस बहुत कम लगता है. बिकॉज कोड मेंटेनेंस व्हेन आई से यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग कि नहीं मुझे कॉमा कहाँ देना है, सेमीकोलन कहाँ देना है, कैसे करना है. ठीक है. इसमें इट्स अ लीन प्रोग्रामिंग. दैट इज द रीजन थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स पाइथन एंड पाइथन इजी पड़ जा रहा है. इसकी वजह से नाउअडेज there are various libraries such as numpy, pandas, which is being used for data science, machine learning, artificial intelligence. Data science का ही पार्ट हो जाता है data analytics, machine learning and artificial intelligence. So Python programming करके people can make career into backend developer. They can get into the data analyst. They can get into the data science. Data science का ही पार्ट है machine learning and artificial intelligence. So that is the reason the multiple job openings basically are being applicable for whoever knows Python. बट हम इस ट्रेनिंग में पाइथन को बेसिक्स करेंगे. बेसिक्स इन द सेंस पाइथन कॉन्सेप्ट समझेंगे पूरा डिटेल में. डेटा साइंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट वेयर डेटा फिल्टरिंग, डेटा मसाजिंग, हाउ द बेसिकली डेटा प्रेजेंटेशन मैटर. सो ये सब चीज़ें हम करते हैं उसमें. ठीक है. But I'll not get to the data science part or the machine learning side. Okay. So that is about Python. After completing this course, we will have not this slide actually. After completing this course, we are going to have upsurge interview, which is a mock interview. There would be machine test as well, because when we go into development side, there would be basically machine test would be given and then followed by an interview. And aptitude test also happens depending on the company to company, but we also support give support in that. And our HR team will help you for resume writing and they'll help you for the job reference as well. So this is about Python training program which we are going to cover. I am open for questions now. Anyone have any questions? किसी So topic को लेकर. Yeah. this will be online course, right? You would be attending it online. देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं डिपेंडिंग ऑन द बैच, डिपेंडिंग ऑन द एडमिशन एक्चुअली. सो एवरी 15 days वी हैव दिस बैच फॉर्मेशन. तो ऑनलाइन भी बनता है, ऑफलाइन भी बनता है, डिपेंडिंग ऑन द माई अवेलेबिलिटी एज वेल.
and then student preference. Yeah. ऑनलाइन के केस में एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि यू गेट द रिकॉर्डिंग, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड यू कैन कीप इट विद यू फॉर लाइफ टाइम, एंड जब भी आपको कुछ क्वेश्चन आया रही क्या कॉन्सेप्ट है, जस्ट प्ले द वीडियो, प्रैक्टिस इट। तो वो वहाँ पे ऑनलाइन वाले हेल्प करते हैं। ऑफलाइन में ये चैलेंज नहीं बोलूंगा मैं, ऑफलाइन में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कम डाउन ड्यूरिंग द क्लास, वी विल हैव द क्वेरी रेजोल्यूशन एवरीथिंग, बट वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था ना इसके लिए। Anyone have any questions on the Python? मैं चाहिए तो आप लोग को ना कोर्स कंटेंट एक बार दिखा देता हूँ। Data types, string, list, dictionary, object-oriented programming, exception handling, regular expression, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेटर्स ये सब यूज नहीं होता है, जनरेटर डेकोरेटर, बट वी विल कवर दोस पार्ट, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं यूज होता है, ठीक है। एंड पाइथन विद टीके एंटर यूज फॉर, जैसे मैंने बताया, क्रिएटिंग फ्रंट एंड एंड ऑल। इसमें लूप्स भी कवर होते हैं। हाँ, वो तो फॉर लूप ना, वो तो होता ही होता है, वो हर प्रोग्रामिंग में होता है, उसके बगैर कर ही नहीं सकते हो आप। इफ एल्स कंडीशन, व्हाइल लूप होता है। उसका जो राइटर है उसका ड्यूरेशन कितनी होता है? 1.5 month के डायलॉग लिखने के टाइम वीकेंड रहेगा तो उसके बाहर निकलते थे। वीकेंड रहा तो फिर वही है कि फिर 2 hours विल बी डूइंग इट, एंड 2 hours, एंड देन अगर कोई बैच एब्सेंट हो जाता है या तो इफ आई एम नॉट अवेलेबल, देन वो फिर 1.5-2 महीना भी खिंच जाता है, बिकॉज वो हफ्ते में, मतलब महीने में 4 वीकेंड्स ओनली, 4 वीकेंड्स आ गए, 8 लेक्चर्स होते हैं, तो वैसा है। बट डिपेंड बैच में कैसे, हाउ द स्टूडेंट परफॉर्म एज वेल। सो हम ऐसा टाइमलाइन नहीं के बैठ के अरे अभी आज 1 तारीख को है तो मतलब हम लोग को अगले महीने 15 को खत्म करना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लर्न बेसिकली, इट्स अ प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें थियरी होते हैं, नोट्स होते हैं, सब देते हैं हम लोग, डोंट वरी फॉर दैट। बट जब तक स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं करेगा, असाइनमेंट नहीं करेगा ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, बिकॉज ये I would say BA BCom, sorry, I do not want to offend any stream, but बिना प्रैक्टिस, बिना असाइनमेंट किए डिफिकल्ट है पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। तो certain if you want we gave assignments as well, ये different topic wise भी we have, and then notes also topic wise we have, okay, and depending on the topic as well I give the assignments, so बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो आ जाएगा, तो कोशिश नहीं करोगे गिव अप। मेजरली देखो बहुत लोग डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं, मैं एक सिंपल फंडा बताता हूँ, देते हैं कि एरर आ गया, नहीं कर पाएंगे अपन, हमसे ना हो पाएगा, विच इज रॉन्ग। एरर आना इज अ फर्स्ट वर्ड लर्निंग और पाइथन प्रोग्रामिंग। एरर आना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, व्हाई? बिकॉज वंस द एरर कम्स यू नो कि अरे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो एरर आया, ठीक है, तो वो बताता है तुमको कि क्या चीज होता है, प्रॉब्लम किधर है, क्या है, सो लाइक दैट। तो यू नीड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड जस्ट रन इट, सिंपल। तो मेजरली मैंने देखा है बहुत लोग ना, देवर कपल ऑफ माई स्टूडेंट्स, अरे बहुत हैवी पढ़ रहा है सर, हैवी तो पड़ेगा ही ना, बिकॉज इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें हर बार जैसा बोला जाता है, सिखाया जाता है, वैसा नहीं होता है। रियल लाइफ और इन ऑन अ प्रोजेक्ट द टास्क आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैं बढ़ा दूंगा, नहीं, वो जॉब करके ही आएगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन IT। पहले 1 साल यूल बेसिकली हैमर्ड अ लॉट, मतलब परेशान हो जाओगे, 2-2, 3-3 दिन लगते हैं कभी कभी एक छोटे से इशू को सॉल्व करने में। बट उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि 2-3 के बाद जब वो सॉल्व होता है ना, यूल फील यू हैव अचीव्ड समथिंग, बट दैट इज द बिगिनिंग। उस टाइप का एरर जब फ्यूचर में आएगा तो यूल सॉल्व इन 2 minutes ओनली, बिकॉज यू हैव लर्न।
तो वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स यू विल ट्राई सॉल्विंग इश्यूज एंड यू गेट टू नो कि नहीं इसमें ये आएगा तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो पाइथन प्रोग्रामिंग वर्क्स लाइक दैट. एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफॉल्ट हो, अगर जावा की भी बात कर ले तो वैसे ही है. ठीक है. क्वेश्चंस, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस गाइस. नो क्वेश्चंस? या बहुत ज्यादा समझ गया तो बिल्कुल नहीं समझा. ऐसी ऑडियंस भी कम हो गई थोड़ी. ठीक है. इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस डेफिनेटली कनेक्ट विद द रिस्पेक्टिव काउंसलिंग टीम. दे विल हेल्प यू. बेस्ट टाइम क्या हो सकता है एंड मोड क्या हो सकते हैं, कोर्स कंटेंट देंगे नहीं देंगे, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं, ये टॉपिक सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे. दे विल कनेक्ट विद मी एंड दे विल आंसर योर क्वेश्चन और दे हैव द कोर्स कंटेंट एंड एवरीथिंग. दे विल हेल्प यू विद दैट. डोंट वरी फॉर दैट पार्ट. ठीक है. Okay. Thank you, guys. Thank you for connecting. Thank you all.